Hello students, I hope you all are fit and fine with good condition of health. Today in this video I'm going to explain the third part of Chandni, the seventh chapter of the Alien Hand, the supplementary reader for class 7. So let's get started. Chandni reached the hilltops. चांदनी पहाड़ी पर पहुंच गई. It seemed to her that the all hills were standing in a row to welcome her. उसका ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी पहाड़ी उसको वेलकम करने के लिए उठ खड़ी हुई है. She felt like a child meeting her parents after years of separation. वो उस बच्चे की तरह फील कर रही थी जो अपने माँ बाप से, माता पिता से सालों जुदाई के बाद मिलता है. Whenever she went, the tall grass rose to embrace her. जब कभी वो चलती थी तो लंबी लंबी घासें उसको गले लगा लेती थीं. The flowers bloomed to amuse her. फूल उसको खुश करने के लिए खिल उठते थे. And the wind sang an endless song of welcome. और हवा वेलकम का गाना गा रही थी. How different all this was from her past in the prison house of Abu Khan's compound. ये सब कुछ कितना अलग था उसके अब्बू खान के घर में कैदी की तरह रहने से. It was the happiest day in Chandni's life. ये चांदनी की लाइफ का सबसे खुशी का दिन था. That day she played for hours on the grassy slopes of the hills. उस दिन वो पहाड़ी के घासों वाले स्लोप पर ढलान पर घंटों खेलती रही. She met a herd of wild goats who asked her to join their group. वो एक जंगली बकरियों के ग्रुप से मिली जिन्होंने उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहा. But चांदनी politely refused. लेकिन चांदनी ने अच्छे अंदाज में मना कर दिया. She wanted to enjoy her new freedom all by herself. वो अपनी नई आज़ादी को अकेले इंजॉय करना चाहती थी. The sun disappeared behind the hills. सूरज पहाड़ी के पीछे गायब हो गया. And soon darkness enveloped the grass. और जल्द ही अंधेरा घासों पर छा गया. The flowers and the trees. फूल और पेड़ों पर भी. The wind stopped blowing. हवा चलना बंद हो गई. And there was stillness all around except for a strange sound which was coming from the bushes. और हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ एक अजीब सी आवाज़ झाड़ी से आ रही थी. The sound was like a grunt. ये गुर्राने की आवाज़ थी. What was it? ये क्या था? It wasn't Abu Khan's voice calling her back to the compound. ये अब्बू खान की आवाज़ नहीं थी जिसमें वो उसे अपने घर वापस बुला रहा हो. Nor was it the voice of another goat. और ना ही ये किसी दूसरी बकरे की आवाज़ थी. Then Chandni thought of the dangerous wolf who lived in the hills. तब चांदनी को वो खतरनाक भेड़िया याद आया जो पहाड़ी में रहता था. She felt scared. वो डर गई. Here is Chandni's encounter with the wolf. Should she go back to the safety of Abu Khan's hut? उसने सोचा कि क्या उसे अब्बू खान की झोपड़ी की सेफ्टी में वापस चला जाना चाहिए. No, she said to herself. नहीं, उसने अपने जी में कहा. Death in an open field is far better than life in a small hut. छोटी सी झोपड़ी में जिंदा रहने से खुले मैदान में मर जाना बेहतर है. The wolf had come out of the bushes and was staring greedily at Chandni. भेड़िया झाड़ी से बाहर आ गया था और ललचाई हुई नज़रों से चांदनी को देख रहा था. His eyes were shining like burning coals in the darkness. अंधेरे में उसकी आँख दहकते हुए जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थी. He seemed in no hurry. वो
किसी जल्दी में नहीं दिख रहा था। He knew the new goat was his, क्योंकि वो जानता था कि नई बकरी अब उसकी है। The wolf and the goat seized up each other. भेड़िया और बकरी दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। The wolf was big and ferocious, whereas the goat, though healthy, was small. भेड़िया बड़ा और खूंखार था, जबकि बकरी भले ही हट्टी कट्टी थी लेकिन छोटी थी। But small is not weak, लेकिन हर छोटा कमज़ोर नहीं होता है। चांदनी stood firm on her legs. चांदनी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो गई। Head slightly bent, अपने सर को हल्का सा झुका लिया। And horns jutting out, और सींग को आगे की तरफ निकाल लिया। She was a picture of courage, वो एक हिम्मत की तस्वीर थी। She looked like a brave soldier ready to fight a treacherous enemy. वो एक बहादुर सोल्जर और सिपाही की तरह लग रही थी जो अपने खतरनाक दुश्मन से लड़ने के लिए रेडी हो। I must put up a good fight, चांदनी thought. चांदनी ने सोचा कि मैं एक ज़बरदस्त लड़ाई लड़ूंगी। सक्सेस और फेलियर इज़ मैटर ऑफ लक और चांस। कामयाबी नाकामी तो एक किस्मत की बात है। द फाइट बिगेन, लड़ाई शुरू हुई। इवेंट ऑन थ्रू द नाइट, पूरी रात चलती रही। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगेन टू ग्रो पेल। चाँद जो रात भर लड़ाई को देख रहा था अब पीला पड़ने लगा। एंड सडनली हीड बिहाइंड द क्लाउड्स, और अचानक बादलों के पीछे छुप गया। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपेयर वन बाय वन, सितारे भी एक एक करके गायब होने लगे। ए फेंट लाइट अपेयर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क। पूरब से हल्की हल्की लाइट निकलने लगी और सुबह की अजान दूर की मस्जिद से आने लगी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड। सूरज की पहली किरणों ने चांदनी को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। शी वॉज कंप्लीटली soaked in blood, वो पूरी तरह खून में लथपथ थी, डूबी हुई थी। The wolf, tired and sleepy, was getting ready to devour her. भेड़िया थका हुआ और निधियाया हुआ चांदनी को खाने के लिए रेडी हो रहा था। An assembly of birds perched on top of a tree nearby was debating the result of the fight. चिड़ियों का एक झुंड जो करीब के पेड़ पर बैठा हुआ था लड़ाई के रिजल्ट के बारे में डिस्कशन कर रहा था, डिबेट कर रहा था कि हु इज़ द विनर, कि जीतने वाला कौन है। वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक ने पूछा। द वॉल्फ, ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ देम सेड, अक्सर ने कहा कि भेड़िया, पक्का भेड़िया जीता। ए वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस चांदनी इज द विनर। एक बुद्धिमान बूढ़ी चिड़िया ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, भरोसे के साथ ऐलान किया, कहा कि चांदनी इज द विनर, चांदनी जीतने वाली है। Okay students, so this was the explanation of the third part of Chandni, the 7th chapter of the Alien Hand supplementary reader book for class 7. I hope you got it, enjoyed it, keep it up, the girl is ahead of you.